جب میں پہلی بار اپنی خالہ کے گھر گیا تو یہ سب کچھ ہو میرا نام آیان ہے، اور اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ لیکن آج میں آپ کو اپنی جوانی کی کہانی سناؤں گا جب میں پہلی بار اپنی نانی کے گھر آیا تھا۔ میں اپنی امی کے خاندان میں سب سے پہلا بچہ تھا، اور پہلے بچے کو ہمیشہ بہت پیار دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نانی، خالائیں اور ماموں سب مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ نانی کے گھر میں 2 خالائیں اور 1 ماموں رہتے تھے۔ بڑی خالہ کا نام فوزیہ تھا اور چھوٹی خالہ کا نام امبر۔ میں بچپن سے امبر خالہ کے قریب تھا اور وہ بھی مجھے بہت چاہتی تھی۔ فوزیہ خالہ کی شادی ہو چکی تھی اور ماموں بھی شادی شدہ تھے، اس لیے گھر میں زیادہ تر وقت صرف امبر خالہ اور میں ساتھ رہتے تھے۔ امبر خالہ 20 سال کی تھی اور میں 15 کا۔ اتنی عمر میں بھی ان کی خوبصورتی لاجواب تھی۔ میں اکثر امبر خالہ کے کمرے میں سوتا تھا، اور ہم دونوں کا رشتہ بہت دوستانہ اور محبت بھرا تھا۔ ایک رات تقریباً 10 بجے امبر خالہ واش روم جانے لگیں۔ میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ واپس آ کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری آنکھیں کھل گئیں، مگر میں نے سو جانے کا ڈرامہ کیا۔ اگلی صبح ہم دونوں نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ امبر خالہ نے کہا، جا کر تازہ ہو جاؤ، میں تمہارے کپڑے دے دیتی ہوں۔ میں جلدی سے واش روم گیا، تازہ ہو کر واپس آیا، اور امبر خالہ نے مجھے کپڑے دے دیے۔ وہ میری طرف مسکرا رہی تھی، اور میں شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ ناشتہ لگانے کے بعد ماموں بھی آئے اور 2 دن کے لیے سفر پر روانہ ہوئے۔ انہوں نے گھر کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑی اور امبر خالہ کی حفاظت کرنے کی ہدایت دی۔ میں اور امبر خالہ ناشتہ کے بعد ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد امبر خالہ نے اپنی دوست صوفیہ کو کال کی، جو 22 سال کی خوبصورت لڑکی تھی، اور چند دیر میں وہ گھر آ گئی۔ صوفیہ نے سلام کیا اور امبر خالہ نے اسے کمرے میں لے جا کر خوش آمدید کہا۔ میں ویشو اور صوفیہ کے درمیان کچھ عجیب تعلق محسوس کر رہا تھا، مگر میں ڈرتا رہا۔ اتنے میں ماموں اور مامی بھی باہر گئے۔ اب گھر کی مکمل ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی۔ امبر خالہ نے مجھے اور صوفیہ کو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھنے کو کہا اور خود جھاڑو دینے لگے۔ میں ان کے کام کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا نروس تھا۔ جھاڑو لگاتے ہوئے امبر خالہ کے ہاتھ پر آٹا لگ گیا، اور وہ میرے پاس آئیں کہ میں آٹا صاف کر دوں۔ میں آگے بڑھا، اور اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ میں ان کی قربت میں خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ لیکن اچانک صوفیہ کی رینگنگ فون کال نے ماحول بدل دیا۔ صوفیہ کے گھر میں کسی عزیز کا انتقال ہوا تھا، اور وہ فوری چلی گئی، اپنی رنگ میرے پاس ہی چھوڑ گئی۔ امبر خالہ نے مجھے ڈانٹا کہ میں نے رنگ کیوں چھوڑی، اور میں نے ندامت کے ساتھ معافی مانگی۔ وہ تھوڑی ناراض ہوئی، مگر آخرکار مجھے معاف کر دیا۔ میں بہت شرمندہ اور عاجز تھا۔ اس کے بعد امبر خالہ نے کچن میں آٹا گوندنے کی تیاری کی، اور میں ان کے ساتھ کچن میں بیٹھ گیا تاکہ مدد کر سکوں۔ کچن میں کام کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ امبر خالہ واقعی بہت خوبصورت ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں آٹا تھا، بال ان کے چہرے پر آ رہے تھے، اور وہ بار بار انہیں پیچھے کر رہی تھی۔ میں ان کی مدد کر کے ان کے ماتھے سے آٹا صاف کیا۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت دلنشین تھا۔ بعد میں ہم دونوں نے ناشتہ لگایا، اور امبر خالہ نے مجھے کھانے میں سب سے پہلے لقمہ کھلایا۔ میں نے بھی ان کو دیا، اور ہم دونوں نے مل کر کھانا ختم کیا۔ اس کے بعد امبر خالہ اپنے کمرے میں چلی گئی، اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے آیا۔ صبح کے وقت امبر خالہ نے کہا، آیان، آؤ ہم باہر آئس کریم کھانے چلیں۔ ہم بازار گئے، ایک خوبصورت آئس کریم پارلر میں بیٹھے، اور پردے والے کیبن میں آئس کریم کھانے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ ہم دونوں کے درمیان
कुछ नया रिश्ता जन्म ले रहा है। और ये लम्हे मेरे दिल को छू गए। आईएस करीम पार्लर में हम दोनों बैठे और बाहर की गर्म हुआ के बावजूद कीबन के अंदर ठंडी खुशबू और खुशगवार माहौल था। अंबर खाला ने मुझे आईएस करीम का एक खास फ्लोर डिश मुंतखब करके दिया और मैं भी उनके लिए अपनी पसंद की आईएस करीम का ऑर्डर कर गया। पार्लर में ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए हमें काफी सुकून मिला। मैं और अंबर खाला खामोशी से अपनी आइस क्रीम खा रहे थे, मगर कभी कभार हम एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते थे। मैंने महसूस किया कि अंबर खाला की मुस्कुराहट में एक खास नरमी और मोहब्बत छिपी हुई थी जो मेरे दिल को बहुत खुश कर रही थी। आइस करीम खाते खाते अंबर खाला ने मुझसे पूछा, आयान, तुम वाकई घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो? मैंने सर हिलाकर कहा, हाँ खाला, आप फिक्रमंद ना हो, मैं हर चीज का ख्याल रखूंगा। अंबर खाला ने मेरी तरफ देखा और एक देर तक खामोश रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, मुझे तुम पर एतमाद है। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। कुछ देर बाद पार्लर के बाहर एक जोड़ा आया जो बहुत खुश नजर आ रहा था। मैंने अंबर खाला की तरफ इशारा किया और कहा, खाला, ये लोग बहुत खुश लग रहे हैं, शायद वो भी मोहब्बत में हैं। अंबर खाला ने मेरी बात सुनी और हंसते हुए कहा, हाँ आयान, मोहब्बत वाकई जिंदगी को खूबसूरत बना देती है। पार्लर से निकलकर हम वापस घर आए। घर में दाखिल होते ही मैंने महसूस किया कि अंबर खाला कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही हैं। वो किचन में चाय बनाने लगे और मैं टीवी लाउंज में बैठकर थोड़ी देर आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद अंबर खाला चाय लेकर आए और मेरे पास बैठ गए। चाय पीते हुए हम दोनों ने दिन भर के छोटे छोटे लम्हात याद किए और हंसने लगे। मैंने महसूस किया कि अंबर खाला के साथ ये लम्हात मेरे दिल को बहुत सुकून दे रहे हैं। मैं शर्मिंदगी के बावजूद उनके करीब बैठा रहा और अंबर खाला भी मुझे अपनी बातों में शामिल करती रहीं। इतने में बाहर से आवाज आई कि किसी ने दरवाजा दस्तक दी। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो अंबर खाला ने कहा, आयान, तुम यहां रहो, मैं देखती हूं कौन आया है। दरवाजे पर एक पड़ोसी खातून थी जिन्हें अंबर खाला जानती थी। अंबर खाला ने खुश आमदीद कहा और मैं भी उनके साथ थोड़ा सा गुफ्तगू करने लगा। कुछ देर बाद पड़ोसी खातून चली गईं और अंबर खाला ने कहा, आयान, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। घर के काम में मदद करना और सब कुछ संभालना वाकई काबिल तारीफ है। मैंने सिर झुकाया और मुस्कुरा दिया। उनकी ये तारीफ मेरे दिल को बहुत खुशी दे गई। उस दिन के बाद हम दोनों ने फैसला किया कि छोटे छोटे लम्हात को खुशी के साथ गुजारना है। मैंने महसूस किया कि अंबर खाला मेरे लिए सिर्फ खाला नहीं, बल्कि एक रहनुमा और दोस्त भी हैं। हम दोनों के दरमियान एतमाद और प्यार बढ़ने लगा। रात के वक्त में अपने कमरे में गया और सोच रहा था कि कैसे अंबर खाला की हर बात और हर मुस्कुराहट मेरे दिल को छू रही है। मैंने वादा किया कि मैं कभी भी उनका एतमाद नहीं तोड़ूंगा और हमेशा इनका ख्याल रखूंगा। रात का वक्त आया और घर में सुकूत छा गया। अंबर खाला अपने कमरे में चली गई थी और मैं भी अपने कमरे में थोड़ा सा आराम करने बैठ गया। लेकिन दिल की बेचैनी ने मुझे प्रसकून नहीं होने दिया। आज के दिन के लम्हात बार बार मेरे जहन में आ रहे थे। अंबर खाला की मुस्कुराहट, इन की बातें और वो लम्हे जब हम एक दूसरे के करीब थे, सब कुछ दिल को छू रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने फैसला किया कि मैं अंबर खाला के कमरे में जाकर उनसे बात करूं। मैं नरमी से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गया। अंबर खाला बेड पर बैठी थीं और किताब पढ़ रही थीं। उन्होंने मुझे देख कर हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन उनकी नजर में सख्ती भी थी। मैं बोली, खाला, मैं आज की गलती के लिए वाकई शर्मिंदा हूं। मैंने कभी भी ऐसा नहीं
सोचा था कि मैं आपका एतमाद तोड़ दूंगा। अंबर खाला ने मुझे गौर से देखा और कहा, आयान, ये बात मैं समझ सकती हूँ कि तुमने नीयत से कुछ गलत नहीं क्या, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि एतमाद एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना मुश्किल होता है। मैंने सिर झुकाया और खामोशी अख्तियार की। अंबर, खाला ने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन आइंदा कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब से मैं हमेशा अंबर खाला के एतमाद को बरकरार रखूंगा और उनकी हर बात को दिल से मानूंगा। उसी दौरान कमरे में एक खामोशी छा गई। मैं अंबर खाला की तरफ देख रहा था और वो भी मेरे नजरें देख रही थी। ये लम्हा बहुत निराला था। हम दोनों के दरमियान लफ्जों की जरूरत नहीं थी, सिर्फ नजरें सब कुछ कह रही थीं। कुछ देर बाद अंबर खाला ने कहा, आयान, तुम वाकई समझदार हो और ये जो कुछ आज हुआ, इससे तुम्हें सबक मिलना चाहिए कि कभी भी बगैर सोचे कुछ नहीं करना चाहिए। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी और कहा, हाँ खाला, मैं समझ गया। रात के इस लम्हात ने हमारे दरमियान एक मजबूत ताल्लुक कायम किया। मैंने महसूस किया कि अंबर खाला न सिर्फ मेरी खाला हैं, बल्कि एक रहनुमा और दोस्त भी हैं, जिनकी हर बात मेरे दिल को सुकून देती है। अगले दिन सुबह के वक्त हमने मिलकर घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियां संभाली। मैंने महसूस किया कि हर लम्हा अंबर खाला के साथ कीमती है और ये वक्त दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें कमरे में दाखिल हो रही थी। मैं बस्तर से उठा और देखा कि अंबर खाला पहले ही तैयार हो चुकी हैं। वो छोटी छोटी बातों में मसरूफ थीं, लेकिन मैंने महसूस किया कि आज उनका अंदाज कुछ अलग है, जैसे वो मेरे करीब रहने में खुशी महसूस कर रही हूं। मैंने कमरे से निकलकर नाश्ता करने की तैयारी शुरू की। अंबर खाला भी जल्दी से किचन में आ गईं। हम दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाया। इस दौरान मैंने महसूस किया कि अंबर खाला की हर बात, हर मुस्कुराहट में एक खास मोहब्बत छिपी हुई है, जो मुझे अंदर से खुशी देती है। खाने के बाद अंबर खाला ने कहा, आयान, आज हम कुछ खास करने वाले हैं। तुम्हें थोड़ा बाहर जाना होगा और कुछ तजुर्बात करना होंगे। मैंने हैरत से पूछा, खाला, क्या? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, जिंदगी में कभी कभी ऐसे लम्हात आते हैं जो हमें समझाते हैं कि हम कितने जिम्मेदार हैं। आज तुम वो लम्हा महसूस करोगे। मैंने उनकी बात सुनी, मगर दिल में तजस्सुस बढ़ गया। हमने घर से बाहर कदम रखा और अंबर खाला ने मुझे रक्शे में बैठने का इशारा दिया। हम बाजार की तरफ रवाना हुए। रास्ते में अंबर खाला ने मुझसे जिंदगी के मुख्तलिफ सबक बयान किए, जैसे कि एतिमाद, जिम्मेदारी और मोहब्बत की अहमियत। बाजार पहुंचकर हम एक छोटे पार्लर में गए। वहां का माहौल खुशगवार था और कम लोग मौजूद थे। अंबर खाला ने मुझे कहा, आयान, यहाँ हम एक छोटा सा तजुर्बा करेंगे। उन्होंने पार्लर के एक पुरस्कून कोने में मुझे बैठाया और खुद मेरे करीब बैठे। मैंने महसूस किया कि अंबर खाला मेरे करीब हैं और उनकी हर बात मेरे दिल को छू रही है। हम दोनों ने आइस करीम खाई और इस दौरान अंबर खाला ने मुझे अपनी जिंदगी के कुछ राज बताए। ये राज सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो मुझे सिर्फ अपना एतमाद देने के लिए ये सब बता रही हैं। इसी दौरान पार्लर के बाहर एक जोड़ा आया और मैंने देखा कि अंबर खाला मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही हैं। मैंने उनकी आंखों में खुशी और मोहब्बत महसूस की। ये लम्हा मेरे लिए बहुत कीमती था, क्योंकि मैंने ये समझा कि अंबर खाला सिर्फ मेरी खाला नहीं, बल्कि मेरे लिए एक दोस्त, रहनुमा और मुहाफिज भी हैं। बाजार से वापस आकर हम घर पहुंचे। अंबर खाला ने कहा, आयान,
آج کا دن تمہارے لیے ایک سبق تھا. تم نے دیکھا کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے لمحے زندگی کے بڑے سبق سکھاتے ہیں.